तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, इसके बाद लेखक ने और क्या लिखा है इस स्टोरी के बारे में। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry, even in his father in law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left. He could give up tiger hunting altogether. महाराजा की चिंता उस समय अपनी चरम पर पहुंच गई जब उसकी 100 बाघों की गणना में केवल एक बाघ शेष रह गया था। वो सिर्फ इसी बात का दिन में विचार करते थे और इसी बात का सपना रात में देखते थे। इस समय तक उनके ससुर के राज्य में भी बाघों का अकाल पड़ गया था। किसी भी बाघ को कहीं भी ढूंढ पाना असंभव हो गया था। सिर्फ एक बाघ की जरूरत थी। वो केवल एक बाघ को मार डालते थे तो उन्हें कोई भय नहीं रह जाएगा। वो बाघों का शिकार करना भी छोड़ देंगे। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. True enough, the tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. But where was that 100th tiger to beware? He seemed easier to find tiger's meal than a live tiger. Thus the Maharaja was sunk in gloom. But soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. It was first ascertained that this was not the work of Khadarman Sahib or Birasamy Nikor, both famed for their ability to sallow sheep whole. Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. लेकिन उन्हें इस अंतिम बाघ से बहुत सावधान रहने की जरूरत थी। सर मुख्य ज्योतिष ने क्या कहा था? 99 बाघों की मारने के बाद महाराज को 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना है। यह सही बात थी। आखिरकार बाघ एक क्रूर जानवर था। प्रत्येक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यह 100 बाघ कहाँ मिलेगा? एक जीवित बाघ की अपेक्षा बाघिन का दूध प्राप्त करना ज्यादा सरल लग रहा था। लेकिन महाराजा निराश हो गए। लेकिन जल्दी ही एक खुशी की खबर ने उनकी निराशा को दूर कर दिया। उनके अपने ही राज्यों में पहाड़ी तरफ के गांव की भेड़ अचानक गायब होने लग गई। इस बात का पूरा विश्वास था कि यह कार्य कदीर मियां साहिब या बिरासामी नायकर का नहीं था। दोनों ही अपनी पूरी भेड़ निगल जाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। निश्चित रूप से कोई बाघ अपना काम कर रहा था। गांव वाले महाराज को सूचना देने के लिए पहुंचे। महाराज ने उस गांव के 3 वर्षों तक का सारा लगान माफ करने का घोषणा कर दिया और शीघ्र शिकार के लिए निकल पड़े। The tiger was not easily found. It seemed as if it was wantonly hid himself in order to float the Maharaja's will. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him
to doubt the land tax forthwith. The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. He left life, returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. बाघ आसानी से नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो उसने महाराज की इच्छा को ताना मारने के लिए जानबूझकर स्वयं को कहीं छिपा दिया था। महाराज भी पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय कर लिए थे। उन्होंने जब तक बाघ नहीं मिल जाता जंगल को छोड़ने से मना कर दिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराज का गुस्सा और जीत बढ़ता गया। कई अधिकारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। एक दिन उनका क्रोध चरम सीमा पर था तो महाराज ने दीवान को बुलवाया और उसे आगे से भूमिका दुगना करने का आदेश दे दिया। लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा और उस अवस्था में तुम अपने पद से इस्तीफा दे दोगे, राजा ने कहा। In that case, you may resign from your post, said the king. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result would be catastrophic. He left the returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and soaked it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exerted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling his eyes in bafflement. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet easily. The hunters wondered that they should do. They decided that the Maharaja must not came to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. One of the hundreds took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. Then, and commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated.
Until then, the Maharaja has given his entire mind over to tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. But now the king returned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, "Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. A virgin at 300 rupees. Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday," said the king and took it away with him. On that day, father and son played with that teeny little wooden tiger. It had been carved by a unskilled carpenter. Its surface was rough. Teeny silvers of wood stood up like quills all over it. One of those silver pierced the Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. The next day, infection took place in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a surprising sore which spread all over the arm. 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful, but the Maharaja is dead. In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. महाराजा की चिंता उस समय अपनी चरम सीमा पहुंच गई जब उनकी 100 बाघों की गणना में केवल 1 बाघ शेष रह गया था। वो सिर्फ इसी बात का दिन में विचार करते थे और इस बात का सपना रात में देखते थे। उस समय तक उनके ससुर के राज्य में भी बाघों का अकाल पड़ गया था। किसी भी बाघ को कहीं भी ढूंढ पाना असंभव हो गया था। सिर्फ एक बाघ की जरूरत थी। वो केवल एक बाघ को मार डालते हैं तो उन्हें कोई भय नहीं रह जाएगा। वो बाघों का शिकार करना भी छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें इस अंतिम बाघ से बहुत सावधान रहने की जरूरत थी। मुख्य ज्योतिषी ने कहा था कि 99 बाघों को मारने के बाद महाराजा को 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना है। वो सही बात थी। आखिरकार बाघ एक क्रूर जानवर था। प्रत्येक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यह 100वां बाघ कहाँ मिलेगा। एक जीवित बाघ की अपेक्षा बाघिन का दूध प्राप्त करना ज्यादा सरल लग रहा था। इसलिए महाराजा निराश हो गए, लेकिन जल्दी ही एक खुशी की खबर ने उनकी निराशा को दूर कर दिया। उनके अपने ही राज्यों में पहाड़ी तरफ के गांव की भेड़ें अचानक गायब होने लग गई। इस बात का पूरा विश्वास था कि यह कार्य कदीर मियां साहिब या बीरास्वामी नायकर का नहीं था। दोनों ही अपनी पूरी की पूरी भेड़ निकाल जाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। निश्चित रूप से कोई बाघ अपना काम कर रहा था। गांव वाले महाराज को सूचना देने के लिए पहुंचे। महाराज ने उस गांव के 3 वर्षों तक का सारा लगान माफ करने का घोषणा कर दिया और शीघ्र शिकार के लिए निकल पड़े। बाघ आसानी से नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो उसने महाराज की इच्छा को ताना मारने के लिए जानबूझकर स्वयं को कहीं छिपा दिया था। महाराज भी पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय कर लिए थे। उनको जब तक बाघ नहीं मिल जाता
जंगल को छोड़ने से मना कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराज का गुस्सा और जीत बढ़ता गया। कोई अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। एक दिन उनका क्रोध चरम सीमा पर था। महाराज ने दीवान को बुलाया और उसे आगे से भूमि कर दुगना करने का आदेश दे दिया। लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा और उस अवस्था में तुम अपने पद से इस्तीफा दे दोगे, राजा ने कहा। दीवान यह विचार करता हुआ घर आ गया कि यदि महाराज को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो उसके परिणाम मुसीबत पैदा करने वाले होंगे। उसकी जान में जान आ गई जब उसने मद्रास के राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए बाघ को देखा, जिसे अपने घर में गुप्त रूप से छिपा रखा था। मध्य रात्रि को जब कस्बा पूरा शांतिपूर्वक सो रहा था, दीवान और उसकी वृद्ध पत्नी ने बाघ को कार में घसीटा और सीट पर ठूस दिया। दीवान स्वयं कार चलाकर जंगल में गया जहां महाराज शिकार कर रहे थे। जब ये जंगल में पहुंचे तो बाघ ने अपना सत्याग्रह आरंभ कर दिया और कार से बाहर आने से इनकार कर दिया। दीवान ने अपना जोर लगाकर बाघ को कार से धकेला और उसे जमीन पर गिरा दिया। अगले दिन वही बूढ़ा बाघ महाराज की उपस्थिति में आया और इस प्रकार विनम्र प्रार्थना के साथ खड़ा हो गया जैसे वो कह रहा हो, स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है। वो बड़ी ही प्रसन्नता की बात थी कि महाराज ने जानवर पर एक सटीक निशाना लगाया। बाघ एक मुड़े मतलब तहदार ढेर के रूप में गिर पड़ा। मैं 100वें बाघ को मार गिराया हूँ। मेरा वचन पूरा हो चुका है। महाराज अपनी शत्रुता के गर्व से बहुत प्रसन्नचित हो गया। बाघ को शाही इंजाम के साथ राजधानी में लाने का आदेश देते हुए महाराजा तेजी से अपने कार से रवाना हो गए। महाराज के जाने के बाद शिकारियों के बाघ को ध्यान से देखा। बाघ ने उनकी तरफ अचेतन मौन की आंखें से देखा। उस लोगों को पता लग गया कि बाघ मरा नहीं था, गोली का निशाना चूक गया था। यह केवल गोली के पास से गुजरने की तेज ध्वनि से बेहोश हो गया था। शिकारी हैरान थे कि अब क्या करें। उन्होंने निश्चय किया कि महाराज को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि उनका निशाना चूक गया था। यदि ऐसा करने तो वे लोग अपनी नौकरी गंवा देंगे। उसमें से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और बाघ को गोली मार दी। इस समय उसने बिना निशाना चूके उसे मार डाला था। कुछ दिनों के पश्चात महाराजा के पुत्रों का 3रा जन्मदिन मनाया गया। जब तक महाराजा ने बाघों के प्रति अपना सारा ध्यान लगा रखा था, उनके पास सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार के लिए कोई समय नहीं था। लेकिन राजा अब अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वह उसके जन्मदिन पर उसे कोई उपहार देना चाहते थे। वह प्रतिबंधपुरम के बाजार में गए और प्रत्येक दुकान पर तलाश किया कि कोई अच्छा से उपहार प्राप्त नहीं हो पाया। अंत में वे एक खिलौने की दुकान पर लकड़ी का बना हुआ बाघ देखे और निश्चय किया कि वह एक अच्छा उपहार था। उस लकड़ी के बाघ की कीमत केवल 2.25 आना था, लेकिन दुकानदार को मालूम था कि यदि वो इतनी कम कीमत महाराजा को कहेगा तो वो शाही नियम के तहत दंडित किया जाएगा। इसलिए उसने कहा, महाराज, यह शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है और इसकी कीमत 300 रुपये है। बहुत अच्छा, चलो ये तुम्हारी तरफ से सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार को उनके जन्मदिन पर उपहार दिया जाएगा, उसने कहा और उसे अपने साथ ले गया। उस दिन पिता और पुत्र उस छोटे से लकड़ी के बाग के साथ खेल रहे थे। यह एक अकुशल कारीगर द्वारा बनाया गया था। उसका धरातल खुरदुरा था। लकड़ी के छोटे रेशों पर कांटों की तरह खड़े थे। एक रेशा महाराज के दाएं हाथ में घुस गया। उन्होंने अपने बाएं हाथ से उसे खींचकर बाहर निकाल दिया और राजकुमार के साथ फिर से खेलने लग गए। अगले दिन महाराज के दाहिने हाथ में जहर फैल गया। 4 दिनों में हो गई यह दर्द भरने वाला चोट बन गया जो उनके पूरे हाथ में फैल गया। मद्रास से प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बुलाए गए। आपस में वार्तालाप करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन किया गया। 3 ऑपरेशन वाले डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन की थी
ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और घोषणा किए कि ऑपरेशन सफल रहा, महाराज मर चुके हैं। और इस प्रकार 100वें बाघ के अंत में बाघ राजा से बदला ले ही लिया। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि किस तरह मतलब जो ज्योतिष ने जो भविष्यवाणी किया था वो धीरे धीरे सच मतलब हो गया, और अंत में महाराज का मतलब जो 100 जो टाइगर था उसके कारण ही उनका मृत्यु हुआ, उनका मतलब अंत हो गया। तो ये स्टोरी को आप लोग अच्छे से और पढ़ लेंगे, और एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन आंसर जो मैं अभी तक